Bismillahirrahmanirrahim. This is our third lecture on the topic of on the main topic of research methodology and biostatistics, and among that area of research methodology, or in the area of research methodology, we were discussing the subtopic of randomized control trial. Based upon demand of many students that they need my lecture although in English, but they also need the explanation in Urdu. So from this lecture I will also start to explain or give the explanation in Urdu as well. So the both individuals who can understand English as well as Urdu, they can get my lectures. So in the last time when we have left the area of randomization, so we are continuing from the randomization. Now what is randomization? Randomization क्या होती है? Process of assigning patient to a treatment or control group randomly or by chance alone. ठीक है, सो इट इज़ ए मेथड, एक ऐसा मेथड है ये जिसमें हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बाय चांस स्टैटिस्टिकल मेथड के ज़रिए रेंडमाइजेशन यानी रैंडम नंबर के ज़रिए हम कि तमाम इंडिविजुअल्स का जो कि स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको या तो ट्रीटमेंट या कंट्रोल यानी जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग या फिर स्टैंडर्ड ड्रग जो कंट्रोल ड्रग है वो दे रहे होंगे। और इसका तरीक़ाकार भी मैंने लास्ट टाइम बताया था लेक्चर में कि इसके कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर होगा जो कि कंप्यूटर किसी को भी जो है वो असाइन कर सकता है। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द बायसेस एंड कन्फाउंडिंग इन द स्टडी। इससे फ़ायदा ये होगा कि स्टडी में बायस नहीं आएगा किसी किस्म का और कोई कन्फाउंडर के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। कन्फाउंडर भी वही होता है जो कि इंटरनल वैलिडिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये कन्फाउंडर या कन्फाउंडिंग फैक्टर्स ये होते हैं कि जो कॉज एंड इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप को वीक कर देते हैं। यानी कॉज यानी अगर ड्रग की वजह से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आ रहा है, सो दैट विल बी डाउटफुल कि ये वेदर दिस एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट इज़ रियली बिकॉज ऑफ ड्रग और बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न। अगर कोई और रीज़न आ रहा है तो वो वहाँ पे कन्फाउंडिंग फैक्टर कहलाएगा। Process of randomization can occur by there are different ways: simple randomization, block randomization, stratified randomization and adaptive randomization. अब हम इसको देख लेते हैं वन बाय वन कि ये randomization की कौन कौन सी जो है वो टाइप्स हैं। तो अगर हम सबसे पहले सिंपल randomization की बात करें तो it involves use of random number generator, means maybe computer who generate the random number, to allocate participants to the study group. Maybe that study group is treatment group or maybe the control group. This is equivalent to flipping a coin in a case of two treatment group where head receives the treatment A and tail receives the treatment B. Means same like आप कोई coin जो है उसको flip कर रहे हैं और उससे फिर जो है वो उसकी head या tail जो भी आता है उसकी बेस पर वो डिसीजन होगा कि that individual will go whether in treatment A or in treatment B. Suppose that treatment A is control drug and treatment B is experimental drug. This method is susceptible to flaws when sample size is small because unequal number of subjects in terms of baseline may assign to two groups in the studies. सपोज दैट हेड बार बार आ रहा है तो एक की तरफ जो है वो ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाएंगे और एक ग्रुप ट्रीटमेंट की तरफ कम इंडिविजुअल हो जाएंगे, तो सैम्पल साइज़ की इक्वलिटी जो होगी वो अनइक्वल हो सकती है। तो इसमें ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसके बाद है नेक्स्ट मेथड इज़ ब्लॉक रैंडमाइजेशन। Process of dividing potential study subject into a specified number of blocks to be randomized at the beginning of a trial as means of ensuring that the number of subject in each treatment will be equal. Means that कि हम शुरू से ही number of individual decide कर लेंगे। Suppose that 300 individual है, 300 individuals are there, so one individual will go in the treatment group, one individual will go in the control group, ताकि फिर इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ग्रुप में हो सके। ईच ब्लॉक हैज़ द सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एट द एंड एंड असाइन फॉर ईच ड्रग और ईच ग्रुप। इफ देयर आर टू ट्रीटमेंट्स एंड वन पेशेंट इज असाइन टू ईच ट्रीटमेंट देन द साइज ऑफ ईच ब्लॉक इज 2। फिर हम उसका साइज जो होगा वो और बढ़ा देंगे। अनदर मेथड इज स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन। व्हाट इज दिस thing? Stratified, we make the strata.
process of randomization that ensures balance of participants for predefined strata based on prognostic factors such as disease severity among study groups. Means that we will make the strata, छोटे छोटे हम स्ट्रेटा बना लेंगे. सपोज दैट डिजीज सीवियरिटी के बेस पे कि हमने 3 स्ट्रेटा बना लिए कि वो पेशेंट्स जो कि प्री हाइपरटेंसिव वाले, वो पेशेंट्स जिनको एज पर JNC 7 गाइडलाइन स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, और एज फिर तीसरा स्ट्रेटा जो होगा हमारे पास उनमें वो पेशेंट्स आएंगे जिनको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है. तो इस तरह से 3 डिफरेंट स्ट्रेटा बना लेंगे जो कि स्ट्रेटा आपस में जो होंगे अंदर उस स्ट्रेटा के अंदर जिनमें होमोजेनाइटी यानी एक जैसे पेशेंट होंगे. It is important to make sure that the subjects enrolled in each group have equal numbers of each stratum or level of a factor such as age within the strata of old and young patients. इस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि इसकी वजह से कंफाउंडिंग इफेक्ट ना आए कि जो भी फैक्टर है जहाँ पे जिस स्ट्रेटा में आप जो भी, एक तो इंडिविजुअल्स जो एनरोल कर रहे हैं सब इक्वल होने चाहिए तमाम स्ट्रेटा में, 2 स्ट्रेटा हो, 3 हो या 10 हो, और उसमें तमाम फैक्टर्स के लिहाज से, एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, यंग और ओल्ड इंडिविजुअल के हिसाब से तमाम के तमाम इक्वल होने चाहिए. इफ़ ग्रुप ए हैज़ मोर पेशेंट्स अबव 60 years देन ग्रुप बी जिसमें यंगर पेशेंट्स आर लेस देन 60 years वाले मौजूद हैं, देन ट्रायल विल बी इनवैलिड ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ एज. तो इसको नहीं होना चाहिए इसमें स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन में. To achieve balance with each group, a stratified randomization process is employed where stratification of patients and randomly assigning patient is in each stratum. तो इसमें बैलेंस करके जो है वो आप स्ट्रेटा बनाएंगे जिसमें तमाम इंडिविजुअल, चाहे वो जेंडर वाइज हो, चाहे वो एज वाइज हो, चाहे वो कोई और बेस पे हो, तो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे. हाँ, एक चीज़ का डिफरेंस हो सकता है इसमें भी, लाइक द डिजीज सीवियरिटी. एक और मेथड है, अनदर मेथड इज एडेप्टिव रेंडमाइजेशन. Process of assigning patient to a treatment group generally based on previous success to the treatment as the trial progresses. Probability of being assigned to group changes based on the response of the prior patients. Means कि ये जो होगा randomization होगा based upon previous experience of the drug, previous treatment in initial trial or pilot study. The ratio of experimental versus control may be changed from 1:1 to randomly assigned patient to the arm in which the treatments are more favorable. और इसमें 1:1 का रेशो चाहे चेंज हो जाए 1:1 से, और हो सकता है कि ट्रीटमेंट में ज़्यादा पेशेंट हो जाए. Adaptive randomization is not widely accepted in scientific community and their value has not been fully determined. लेकिन ये भी फिर इसमें ये होगा कि एक ग्रुप में जो है ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे, एक ग्रुप में कम हो जाएंगे, तो इस वजह से ये मेथड जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इज द ब्लाइंडिंग ऑफ द स्टडी. अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर or to minimizing the biasness from the study. Clinical trials are highly susceptible to biases that threaten the internal and external validity. तो इसमें ये भी एक इशू है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, और फिर उसकी वो बाइसनेस की वजह से इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. तो फिर अब क्या करें? बेस्ट वे टू मिनिमाइज बायस related to investigator, monitor and patient is to make unaware the treatment allocation, which is referred to as blinding और मास्किंग. तो बेस्ट मेथड क्या है बायस को मिनिमाइज करने का? कि इन्वेस्टिगेटर हो, मॉनिटर हो, पेशेंट हो, उनको अनअवेयर कर दिया जाए कि वो उनकी ट्रीटमेंट एलोकेशन क्या है, विच ड्रग दे आर टेकिंग, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मीन्स कंट्रोल ड्रग, या फिर एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो कि ट्राई की जा रही है, उसको जो है ब्लाइंड या मास्क कर दिया जाए. ब्लाइंडिंग कैन बी सिंगल, डबल और ट्रिपल. सिंगल का मतलब ये हुआ कि पेशेंट को मालूम नहीं होगा, डबल का मतलब ये हुआ इन्वेस्टिगेटर और पेशेंट दोनों को मालूम नहीं है, ट्रिपल का मतलब हुआ मॉनिटर को भी, जो थर्ड पार्टी है उसको भी नहीं मालूम है. इन सम इंस्टेंसेस ओपन लेवल स्टडीज़ आर कंडक्टेड, जहाँ पे ओपन स्टडी यानी विदाउट ब्लाइंडिंग आप कर सकते हो, कोई वैलिडिटी का इशू नहीं हो स्टडी में, तो फिर वहाँ पे की जा सकती है. सिंगल ब्लाइंड
In a single blind trial, only one of the three categories of individual, जिसमें 3 individual वही investigator, monitor and patient, is unaware of the intervention assigned. But mostly क्या होता है, blinding employ for participant rather than investigator, यानी वो जो patient हैं, invest participants हैं, ज़्यादातर blind उनको रखा जाता है single blind study में. Double blind में, in double blind trial, both the participant in the study or the subject and those involved in the assessment like investigator are unaware of the randomization schedule. Means के subject patients और investigator यानी researcher जो करवा रहा है clinical study, दोनों को नहीं मालूम कि randomization की वजह से कि कौन सा patient जो है वो treatment ले रहा है और कौन सा control ले रहा है. Phase 3 studies require at least 2 double blind randomized trial फॉर ड्रग अप्रूवल बाय द FDA. फेज 3 स्टडीज़ जो ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस में होती हैं, आम तौर पर वो इसी तरह की स्टडीज़ होती हैं जिसमें डबल ब्लाइंडिंग की जाती है और ये FDA की या तमाम रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है कि अगर ये ड्रग्स जो होंगी डबल ब्लाइंड इनकी स्टडी नहीं होगी तो वो फिर अप्रूव नहीं होंगी क्योंकि उसमें बायसनेस का चांस है. Triple blind, a triple blind design is an extension of the double blind study. What happen in triple blind? Patient, investigators, monitors, all are blinded. Only independent review board open the label of blind data and gather the information of the test drug and the control drug. तो फिर उसके बाद उस रिजल्ट को टेबुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और रिजल्ट्स फाइनलाइज किए जाते हैं. तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि मॉनिटर जो है स्टडी का उसको भी नहीं पता कि कौन सा पेशेंट जो है वो इस स्टडी में जो है वो कंट्रोल ड्रग ले रहा है और कौन सा पेशेंट जो है वो टेस्ट ड्रग या एक्सपेरिमेंटल ड्रग ले रहा है. ओपन लेबल स्टडी इस जिसमें ब्लाइंडिंग नहीं होगी. इन ओपन लेबल स्टडी ऑल पार्टिसिपेंट्स, investigator and assessor are aware of the treatment allocation. This type of design should be avoided because of potential for patient reporting and investigator bias. दोनों तरह के इसमें हैजर्ड हैं कि पेशेंट जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो भी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो ट्रीटमेंट ले रहा है और जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग ले रहा है, जो कंट्रोल ड्रग ले रहा है, और इन्वेस्टिगेटर भी बायस हो सकता है, ख़ास तौर से जब उसका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उस कंपनी से जिस ड्रग की कंपनी जो है वो टेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर इस स्टडी में जो है वो टेस्ट की जा रही हो. Open label designs are restricted to early pharmacokinetic and phase 1 trials. शुरू की जो pharmacokinetic स्टडी होती हैं phase 1 स्टडीज़, उनमें ओपन लेवल स्टडी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि phase 2 भी चल जाती हैं, लेकिन phase 3 जो स्टडी जो हो ड्रग डेवलपमेंट के फेज़ में वो लाजमी तौर पर डबल ब्लाइंड या ट्रिपल ब्लाइंड होनी चाहिए. The another very important part of the study is sample size of the study. Number of participants to be enrolled in each treatment group in a study must be determined before the study conducted. Right? तो हमें ये चीज़ उसका स्टडी का सैम्पल साइज पहले से कंट्रोल और कैलकुलेट करना पड़ेगा. Sample size is estimated using a series of mathematical equations based on several statistical assumptions. ठीक है, कुछ statistical assumptions हैं और statistical formula हैं जो कि जिनकी कुछ mathematical equations हैं जिनके ज़रिए हम कैलकुलेट करके उस स्टडी का सैम्पल साइज, मिनिमम सैम्पल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, goal is to determine the appropriate number of subjects that are needed to test the primary hypothesis of the study. What is the main objective of sample size calculation? ताकि सही नंबर ऑफ इंडिविजुअल आप कैलकुलेट कर लें उस स्टडी में के लिए, ताकि हम उस स्टडी का जो हाइपोथेसिस है उसको सही मानों में टेस्ट कर सकें कि वो हाइपोथेसिस सही साबित होता है या रॉन्ग साबित होता है. Some important consideration for sample size determination are effect size and power. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सैम्पल साइज कैलकुलेशन में कि इफेक्ट साइज क्या है और पावर क्या है. अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट साइज. स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट ड्यू टू ट्रीटमेंट और एसोसिएटेड बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल. तो ये स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन है
किस चीज़ की, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट की, ड्यू टू ट्रीटमेंट। यानी ये क्या होगा एक्चुअली, इसको कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट हम कैसे मालूम करेंगे, जो हम अर्ली पायलट स्टडी कर रहे हैं उस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इससे का एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी क्या है। वो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट जो है हम मालूम कर लेंगे कि ये मैग्नीट्यूड और इफेक्ट या इसके इफेक्ट साइज कम है, मॉडरेट है या हाई है, लो है इफेक्ट साइज या मॉडरेट है या हाई है। तो उन अर्ली स्टडीज़ में ये इफेक्ट साइज डिटरमिन हो सकता है। It is thought to be degree of differences between treatment group that is clinically important. For example, BP differences of 10 milliliter per Hg. Suppose that blood pressure का difference कम होना 10 mmHg, अगर ये हाई है तो फिर मैग्नीट्यूड या इफेक्ट साइज हाई कंसिडर किया जाएगा। डिपेंड करेगा कि हम उस वक्त उसको हाइपोथेसिस की बेस पर कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ये जो ब्लड प्रेशर कम कर रही है टेस्ट ड्रग, ये दूसरी ड्रग के मुकाबले में कितना कम कर रही है। इफेक्ट साइज इज यूजुअली एस्टिमेटेड, और ये एक एस्टिमेट लगाया जाता है, एंड सैंपल साइज इज कैलकुलेटेड टेकिंग इफेक्ट साइज इनटू कंसीडरेशन, और फिर इफेक्ट साइज को कंसीडर रख के सैंपल साइज स्टडी का कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज वाई डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट साइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिफोर कंडक्टिंग or before determining the sample size of the large scale randomized controlled trial. Another important part of the study is the power of the study. Power of study क्या है? Power of study क्या है? Measures the capacity to detect the difference in study group if a true difference exists. Means के power of study ये है कि कोई ड्रग का, यानी अगर डिफरेंस है किसी और से, यानी अगर मेरा हाइपोथेसिस ये था कि माय ड्रग इज सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ड्रग विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, तो फिर इसका मतलब है ब्लड प्रेशर रिडक्शन में डिफरेंस आना चाहिए जो अवेलेबल मार्केट में ड्रग्स हैं। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे स्टडी में कितने इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो इस डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकें बिल्कुल ट्रू फॉर्म में, यानी ट्रू डिफरेंस को मालूम कर सकें अगर वो डिफरेंस मौजूद है। तो उसके लिए मुझे उस स्टडी की पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा। सैंपल साइज इन क्लिनिकल ट्रायल हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी टू डिटेक्ट द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स, और सैंपल साइज का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक होता है कि यानी स्टडी की पावर से, कि अगर हम ट्रू डिफरेंस बिटवीन टू ट्रीटमेंट मालूम करना चाह रहे हैं तो उससे सैंपल साइज से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। लार्ज स्टडी इन्फर्स ग्रेटर पावर टू डिटेक्ट द ट्रू इम्पैक्ट of the new drug or intervention than a small study. एक जर्नल जो एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकल ये प्रूव करते हैं कि वो स्टडी जिसकी पावर ज़्यादा होती है, और वो पावर कैसे ज़्यादा होती है, यानी लार्ज स्टडी होगी उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर हायर इन नंबर, तो वो जो होगा अगर डिफरेंस होगा टेस्ट ड्रग और कंट्रोल ड्रग में कोई डिफरेंस होगा तो वो ट्रू डिफरेंस जो होगा वो बहुत आसानी से डिटरमिन या डिटेक्ट हो सकता होगा कंपेयर टू स्मॉल स्टडी। स्मॉल सैंपल साइज हैव लो पावर, क्योंकि स्मॉल सैंपल साइज से स्टडी का पावर लो हो जाएगा, एंड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आर पॉसिबल। इसलिए स्टडी की जो पावर होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लो पावर की स्टडी जो होगी वो रॉन्ग रिजल्ट्स या फॉल्स रिजल्ट्स दे सकती है। स्टडीज आर टिपिकली डिजाइंड टू हैव 80% पावर टू डिटेक्ट ट्रू डिफरेंसेस इफ एक्सिस्ट। आमतौर पे एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ है कि मिनिमम स्टडी की पावर 80% होनी चाहिए। अगर स्टडी की पावर 80% है तो फिर ये चांसेस बहुत हाई हैं, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई दैट द ट्रू इफेक्ट और द ट्रू डिफरेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। यानी टेस्ट ड्रग और कंट्रोल ड्रग में अगर कोई डिफरेंस है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट में, यानी जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो वो मालूम हो जाएगा। अगर स्टडी की पावर हम कम कर देंगे तो फिर ये ट्रू इफेक्ट नहीं मालूम हो सकेगा, और हम ये नहीं कंपेयर कर सकेंगे कि जो ड्रग का दूसरी जो ड्रग से कोई डिफरेंस इफेक्ट में डिफरेंस है या नहीं है। Now the next important part is research protocol. Clinical research protocol is a standardized document that provide instructions to the investigator on all aspects of carrying out study. Right? It is a document, written document. Research protocol क्या है? Written document है
जिसमें स्टडी के बारे में तमाम इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs मौजूद होते हैं कि कब किस स्टेज पे क्या करना है और किस तरीके से उस स्टडी को कंडक्ट करना है। कंप्लीट प्रोटोकॉल स्टडी का मौजूद होता है। प्रोटोकॉल इंक्लूड्स डिटेल्स अबाउट द साइंटिफिक रैशनल, उस स्टडी का साइंटिफिक रैशनल यानी लॉजिक क्या है, व्हाट इज ए स्टडी ऑब्जेक्टिव और व्हाट इज ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस क्या है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर सब्जेक्ट्स, स्टडी डिजाइन, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी इज दिस, मेथोडोलॉजी क्या फॉलो हो रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, हाउ सैंपल साइज हैज बीन कैलकुलेटेड, after collection of data how you will analyze, which statistical formula you will apply, which statistical test you will apply, and monitoring of the adverse effects and regulatory oversights means के regulatory requirement क्या है, इन तमाम चीज़ों को जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टडी के प्रोटोकॉल में, रिसर्च प्रोटोकॉल में मौजूद होती है। प्रोटोकॉल इज डिजाइंड सो दैट ऑल इन्वेस्टिगेटर कैन अंडरस्टैंड and implement the protocol in the same manner at a single site or multiple study sites. Means that कि अगर स्टडी एक साइट या एक से ज़्यादा साइट पे कंडक्ट हो रही है, सपोज दैट एक मल्टी-नेशनल मल्टी सेंटर स्टडी है कि वो सपोज दैट एक से ज़्यादा सिटीज़ में और कंट्रीज़ में कंडक्ट हो रही है, तो जितने सिटी और जितने कंट्री में कंडक्ट हो रही है तमाम जगहों पर सेम मेथड से उस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो लाजिम बात है जब ये रिटन डॉक्यूमेंट मौजूद होगा तो इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, चाहे वो सिंगल साइट पे हो चाहे मल्टीपल स्टडी साइट्स पे हो। All protocols involving human subject must approved by IRB or EC, IRB Institutional Review Board or EC Ethics Committee. In some countries or in some hospitals or medical centers or research institutes, this committee is called Ethics Committee and in some areas it is called Institutional Review Board. IRB और Ethics Committee ये दोनों सेम है। ये जो भी आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, इसमें इफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व, सो यू मस्ट टेक एथिकल अप्रूवल। एथिकल अप्रूवल इज मस्ट, ताकि उनके जो राइट्स हैं ह्यूमंस के उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए रिसर्च प्रोटोकॉल, इसमें जो है वो यहाँ पर जो है वो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स रिसर्च प्रोटोकॉल के कि एक रिसर्च प्रोटोकॉल में क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस रिसर्च और स्टडी एंड व्हाट इज रैशनल लॉजिक। फिर 2 क्लिनिकल स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं इस स्टडी को कंडक्ट करने के। थर्ड इज द स्टडी डिज़ाइन, स्टडी स्कीम्स, स्कीमेटिक्स, एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, डिसीजन मैकेनिज्म फॉर ब्रेकिंग द ब्लाइंडिंग, कब जो है वो या आपके डिसीजन होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग के जो है कब ब्लाइंडिंग जो है वो ब्रेक करनी है। सपोज दैट कोई एडवर्स इफेक्ट हो गया, अब ये चेक करना है कि इसने क्या लिया था, कौन सी ड्रग ली थी, टेस्ट ड्रग ली थी या कंट्रोल ड्रग ली थी, तो वहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो उसको उसका डिसीजन कौन लेगा, कब लेगा, किस सूरत में लेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद लिखी हुई होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन, नेक्स्ट फोर्थ इज अ सब्जेक्ट सिलेक्शन, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि कौन से पेशेंट्स जो होंगे वो स्टडी के इंक्लूजन क्राइटेरिया को पूरे करते हुए इंक्लूड होंगे, कौन से एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, कौन से जो पेशेंट्स थे जो इंक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरे उतरे, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्टडी, बट ड्यूरिंग द स्टडी उनमें कोई ऐसी बात हो गई कि अब वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे, नाउ दे आर फॉलोइंग द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो फिर उनको स्टडी से जो है विड्रॉ करवा लिया जाए। एंड फिर फिफ्थ पार्ट पे स्टडी ड्रग्स क्या क्या हैं, स्टडी ड्रग कंप्लाइंस एंड एडियरेंस, हाउ इट विल बी मॉनिटर, विड्रॉवल ऑफ सब्जेक्ट ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस कैसे होगा, स्टडी ड्रग सप्लाईज कैसे होंगी, फॉर्मुलेशंस एंड पैकेजिंग किस फॉर्म में होंगी, प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग अगर करनी है तो वो कौन करेगा, किस तरह से होगी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन से रूट से होगी, ओरल है, आईवी है, इंट्रामस्कुलर है या टॉपिकल है, स्टोरेज एंड अकाउंटेबिलिटी, ड्रग को स्टोर कहाँ किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कि जितनी टेस्ट ड्रग और कंट्रोल ड्रग आई थी उतनी ही यूज़ हुई हैं या नहीं हुई हैं, अगर कोई डैमेज हुई है तो वो कहाँ है डैमेज प्रोडक्ट, तो उसका पूरी अकाउंटेबिलिटी, पूरा रिकॉर्ड और ऑडिट मौजूद होना चाहिए।
तो उसके बारे में भी डिटेल मौजूद होगी कि उसका रिकॉर्ड और ऑडिट कैसे रखना है। इसके अलावा कंकमिटेंट मेडिकेशन अगर दी जा रही हैं तो वो कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी अलाउड है। 6 पार्ट पे रिसर्च स्टडी प्रोसीजर क्या होगा इस स्टडी का, वो लिखा हुआ होगा। 7 पार्ट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस असेसमेंट, इसकी डिटेल होगी। 8 एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग, अगर एडवर्स रिएक्शन होता है ड्रग का तो उसकी रिपोर्टिंग कब, कहाँ, कैसे होगी, क्या मैकेनिज्म होगा। नंबर 9 रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, स्टडी की जो भी रिकॉर्डिंग है स्टडी के हवाले से और जो या रिपोर्टिंग है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्या रिपोर्ट अर्ली 24 आवर में रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्या रिपोर्ट जो है वो भले बाद में अगर डिले हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। 10th part is statistical methods and data analysis. Once the data has been collected तो उसका statistical method क्या होगा, data analysis कैसे होगा। 11th quality control and quality assurance, कैसे क्वालिटी को कंट्रोल किया जाएगा स्टडी के दौरान, क्वालिटी को एश्योर कैसे किया जाएगा। 12 डेटा हैंडलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, हु विल हैंडल द डेटा, हु विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टडी, और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा। 13 इज द IRB डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या एथिक्स कमेटी डॉक्यूमेंटेशन। आपने IRB से अपनी स्टडी का अप्रूवल लिया है, नहीं लिया है, अगर लिया है तो वो डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच होना चाहिए। स्टडी डिसकंटिन्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, किस सूरत में स्टडी डिसकंटिन्यू होगी, ये भी इस प्रोटोकॉल में के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। एंड एट द एंड रेफरेंसेस, कि कौन से स्टैंडर्ड रेफरेंसेस को फॉलो किया जा रहा है इस होल स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। तो दीज आर द मेन एरियाज दैट शुड बी अवेलेबल। कम से कम ये, इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मौजूद हो सकती है रिसर्च प्रोटोकॉल में जो कि स्टडी टू स्टडी वेरी करेगी, बट एटलीस्ट ये तमाम इंफॉर्मेशन, ऑल दीज इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन रिसर्च प्रोटोकॉल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। Now the next is the selecting the participants. First is the target population. Group of people with desired clinical and demographic characteristics that will ultimately benefit from generalization of study findings, for example male and female patients of hypertension. अब अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव पे कर रहे हैं तो हमें लाजिम बात है ऐसे पेशेंट चाहिए जो कि मेल और फीमेल हो, क्योंकि नेचुरल रियल लाइफ में यही होता है, और उनमें हाइपरटेंशन भी हो, क्योंकि जो है रियल लाइफ में यही सिचुएशन होती है, ऐसे ही पेशेंट होते हैं। तो वो ताकि बाद में स्टडी को जर्नलाइज किया जाए, उस स्टडी की फाइंडिंग को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे, ताकि उस स्टडी की एक्सटर्नल वैलिडिटी हो। स्टडी सैंपल, सब सेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन accessible to the investigator that participate in the study, for example group of adults. जो target population है, suppose that we have 2 lakh patients of hypertension male and female. अब 2 लाख तो हम नहीं शामिल कर सकते स्टडी में, हमें तो उसमें से सैंपल साइज चाहिए, तो हम स्टडी का सैंपल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, इसमें से स्मॉल सैंपल निकालेंगे, स्टडी सैंपल, ऐसा सैंपल निकालेंगे विच इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस टारगेट पॉपुलेशन, जो इन हाइपरटेंसिव पेशेंट का बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको हम स्टडी में शामिल कर लेंगे। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये क्यों ज़रूरी है? टू कंट्रोल द क्लिनिकल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द स्टडी, a set of inclusion and exclusion criteria is applied during study enrollment, ताकि हम डेमोग्राफिक यानी उसकी एज, जेंडर, उसकी डिजीज सीवियरिटी, उसको जो है वो उसकी बेस पर इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कर सकें। इंक्लूजन क्राइटेरिया रिलेट्स टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द इन्वेस्टिगेटर इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन द स्टडी। इंक्लूजन क्राइटेरिया में हम उस कैरेक्टरिस्टिक को रखेंगे जिसको इन्वेस्टिगेटर मालूम करना चाहता है। जैसे सपोज दैट अगर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मालूम करना चाहता है तो मुझे वो पेशेंट चाहिए जिनको सिर्फ हाइपरटेंशन हो, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रिलेट्स टू द फैक्टर दैट वुड कन्फाउंड और इम्पेयर एबिलिटी टू इंटरप्रेट द स्टडी रिजल्ट्स। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये है कि जिसकी वजह से ये ना हो कि मुझे ड्रग के एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मालूम करने में प्रॉब्लम आने लगे और वहाँ पे कोई कन्फाउंडर आ जाए, तो फिर वो मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो जाएगा। सपोज दैन इनिशियली स्क्रीन में आई हैव सिलेक्टेड फ्यू पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन
But in these patients, some patients have hypertension with heart failure. तो अब ये जो हार्ट फेलियर है, ये वाले पेशेंट्स मेरे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, यानी मैं अपनी स्टडी में इनको शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मुझे ड्रग का ट्रू एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इन पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी भी है, या सपोज दैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है। मुझे सिर्फ वो पेशेंट्स चाहिए जिनको सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन हो। रिक्रूटमेंट means enrollment of the patient in the study. Plan for study recruitment is an important part of clinical protocol. ये बहुत important part है clinical protocol का. Size and quality of study sample for randomization depend upon success of the recruitment plan. Means के size, study sample size, quality, it depend upon के how successfully we recruited the patients. Recruitment strategy must be approved by IRB, means ethics committee, based on ethical principles. Approach for recruiting potential subjects depends entirely on inclusion and exclusion criteria. और उसके बाद recruit करते वक्त हम inclusion और exclusion criteria को सामने रखकर जो है वो पेशेंट्स को उस स्टडी में इंक्लूड करते चले जाएंगे, और जो इंक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते, इट मीन्स दे आर क्वालिफाइंग एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो फिर हम उनको स्टडी में शामिल नहीं करेंगे। सब्जेक्ट्स टू पार्टिसिपेट आर ऑफन रिक्रूटेड बाय पोस्टेड एडवर्टीजमेंट। पोस्टेड एडवर्टीजमेंट के जरिए आप दे सकते हैं कि भाई हमें सब्जेक्ट चाहिए स्टडी के लिए। ऑन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों जगह दे सकते हैं, प्रिंट मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। और वो कहाँ पे? इन रिसर्च सेंटर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा, क्योंकि अक्सर और बेशतर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेशन इनटू क्लिनिकल स्टडीज। अच्छा, नाउ सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, अब कंट्रोल ग्रुप हमें क्या रखना है? फर्स्ट इज द प्लेसिबो कंकरेंट कंट्रोल। Selection of control intervention is most challenging aspect. Why? Placebo consists of an inert substances that is identical in appearance to active treatment. Selection of placebo is appropriate when there is no standard effective therapy to compare experimental intervention. ये 3 पॉइंट जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कह रहे हैं कि ये प्लेसिबो है क्या, कि इंटरवेंशन के जो है ये क्या है? इनर्ट सब्सटेंस है दैट इज आइडेंटिकल इन अपीयरेंस टू द एक्टिव ट्रीटमेंट। एक्टिव ट्रीटमेंट का यानी जो ड्रग ट्राई की जा रही है उसके जैसा ही, बल्कि लेकिन इनर्ट सब्सटेंस है, यानी इसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, यानी ये डमी ड्रग है ये। तो इसको आप कब सिलेक्ट करेंगे प्लेसिबो यानी ग्रुप से कब कंपेयर करेंगे? व्हेन आपके पास व्हेन नो स्टैंडर्ड इफेक्टिव थेरेपी टू कंपेयर एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन, यानी अगर कोई ऐसी ड्रग है, कोई ऐसा थेरेप्यूटिक एरिया जिसका कोई स्टैंडर्ड इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे अभी अगर कोरोना वायरस की कोई ड्रग बना ली जाती है एंटीवायरल, तो उसका कोई कंपेरेटर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको उसको प्लेसिबो से यानी डमी ड्रग से ही कंपेयर करना पड़ेगा उसकी एफिकेसी और सेफ्टी को डिटरमिन करने के लिए। लेकिन वो ड्रग जिसका कोई स्टैंडर्ड मौजूद है मार्केट में, फिर आपको जैसे आपने कोई आर्थराइटिस की पेन किलर बना ली, तो फिर इस वक्त तो आपके पास डाइक्लोफेनेक स्टैंडर्ड मौजूद है मार्केट में, तो फिर उस सूरत में आपको फिर जो है वो ड्रग से ही आप प्लेसिबो से कंपेयर नहीं करेंगे, फिर उस ड्रग से कंपेयर करेंगे। और वजह यह है कि इस सिचुएशन में अगर एक्टिव कंट्रोल अवेलेबल है, इफ़ देयर इज़ नो स्टैंडर्ड इफेक्टिव ट्रीटमेंट विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड इज अवेलेबल, then participants are randomized to either the test drug or standard drug means control drug. तो अगर कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल है तो फिर उस सूरत में जो टेस्ट ड्रग होगी एक ग्रुप की दी जाएगी, और दूसरी जो कंट्रोल ड्रग यानी स्टैंडर्ड ड्रग होगी वो एक्टिव कंट्रोल कहलाएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड वो दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को दी जाएगी, ताकि उससे कंपेयर किया जाए कि जो इस वक्त तक गोल्ड स्टैंडर्ड है मार्केट में उसकी जो एफिकेसी और सेफ्टी है उसके मुकाबले में इस टेस्ट ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी कैसी है, उसी के जैसी है या उससे बेहतर है। और फिर इसमें यह भी है कि इसमें एक एथिकल पैरामीटर भी है, एथिकल फैक्टर भी है कि अगर एक्टिव कंट्रोल यानी गोल्ड स्टैंडर्ड मौजूद है मार्केट में, तो उस वक्त अगर आप प्लेसिबो से जो है वो डिजीज़ को, एक ग्रुप को प्लेसिबो से एक्सपोज कर रहे हैं, तो इट इज़ अनएथिकल कि आप प्लेसिबो को जो है वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल था, यानी उनको आप ट्रीटमेंट से डिवॉइड यानी महरूम, डेप्रीविएट कर रहे हैं। अच्छा, सम टाइम वी डू हिस्टोरिकल और एक्सटर्नल कंट्रोल। In some cases, a group of participants receiving
intervention may be compared to an external group that was observed at different time called historical और इन डिफरेंट सेटिंग्स. मीन्स के वो पहले हिस्टोरिकल कंट्रोल यानी पहले वो किसी ग्रुप ऑफ पेशेंट था, वो किसी ड्रग से ट्राई किया गया तो उसका डेटा हमारे पास मौजूद है, और अब हमारे एक ड्रग से जो टेस्ट ड्रग है उससे एक स्टडी जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं और कंपेयर करेंगे उससे उस हिस्टोरिकल डेटा से जो कि दूसरी ड्रग पे पहले जिससे हम कंपेयर करना चाह रहे हैं उससे उस पर वो ड्रग पे वो स्टडी कंडक्ट की गई थी. Advantage of this type of control is that all participant receives the intervention. Means कि पहले वही पेशेंट्स पुरानी ड्रग ले रहे थे और अब वही पेशेंट नई ड्रग पर आ गए हैं, तो ये इसका एडवांटेज है कि वो दोनों तरह की ड्रग को आजमा चुके होंगे. बट द डिसएडवांटेज इज दैट द स्टडी इज नॉट ब्लाइंड एंड देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस. तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ब्लाइंड नहीं है तो फिर बायसनेस का खदशा है. हिस्टोरिकल कंट्रोल इज नॉट वेल एक्सेप्टेड इन साइंटिफिक कम्युनिटी ड्यू टू इंटरनल वैलिडिटी कंसर्न्स, क्योंकि जब ब्लाइंड नहीं होगी, बायसनेस का चांस होगा, तो इंटरनल वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉन इन्फीरियोरिटी ट्रायल्स. ये क्या चीज़ है? नॉन इन्फीरियोरिटी ट्रायल्स ये एक हाइपोथेसिस होता है बेसिकली. शो दैट द इफेक्ट ऑफ ए न्यू ट्रीटमेंट इज नॉट वर्स देन कंट्रोल. मीन्स के मेरा क्लेम सपोज दैट ये है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मैंने बनाई है दैट इज़ नॉट वर्स दैन द स्टैंडर्ड अवेलेबल इन द मार्केट और द गोल्ड स्टैंडर्ड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. यानी मैं ये कह रहा हूँ कि माई एंटी हाइपरटेंसिव प्रोडक्ट इज़ नॉट इन्फीरियर टू द करंटली मार्केटेड गोल्ड स्टैंडर्ड एंटी हाइपरटेंसिव प्रोडक्ट. यानी मैं जो प्रोडक्ट रिसर्च से मैं जो एंटी हाइपरटेंसिव प्रोडक्ट रिसर्च से मार्केट में लेकर आया हूँ वो जो है इस वक्त जो गोल्ड स्टैंडर्ड एंटी हाइपरटेंसिव प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उससे कमतर नहीं है. तो इस तरह की स्टडी का जो हाइपोथेसिस होता है वो यह स्टडी जो कहलाती है नॉन इन्फीरियोरिटी ट्रायल कहलाती है. एज एन एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेटर में वांट टू नो इफ एन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हैज़ similar clinical benefit to treat hypertension when compared to current standard treatment. वही वाली बात हो गई कि इन्वेस्टिगेटर ये कह रहा है कि जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मैं लेकर आ रहा हूँ उसका सिमिलर क्लिनिकल बेनिफिट है इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, सिमिलर क्लिनिकल बेनिफिट इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन कंपेयर टू द करंट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल की एग्जाम्पल है मेडल स्टडी वेयर इटोरिकॉक्सिब वर्सेज डाइक्लोफेनिक सोडियम वॉज कंपेयर्ड एंड फॉर कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी. ये नॉन इन्फीरियोरिटी ट्रायल का हाइपोथेसिस मेडल स्टडी का ये था कि इटोरिकॉक्सिब वॉज नॉट इन्फीरियर टू डाइक्लोफेनिक सोडियम फॉर कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी. मीन्स डाइक्लोफेनिक सोडियम जितनी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रखती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क रखती है, उतना ही इटोरिकॉक्सिब भी रखती है. तो इस तरह की स्टडी या स्टडी डिज़ाइन कहलाती है नॉन इन्फीरियोरिटी ट्रायल्स. नाउ study design description. Study design description. We have different type of study design. Parallel study, crossover study, carryover and washout period study, factorial design study, group and cluster randomization, adaptive randomization. तो ये जो है मेरे पास डिफरेंट स्टडीज़ हैं जो कि कंडक्ट की जाती हैं. इन स्टडीज़ की डिस्क्रिप्शन के लिए हम इसको और बेहतर अंदाज में more detail, in the more detail we will discuss in the next lecture, and we are discontinuing our lecture of today. So wait for the next lecture. In the next lecture we will continue from the same slide, study design description. Thank you very much.